Okay, good morning class. In our previous class we have already begun with the chapter of MS Paint. So we will continue further in this lecture. So there are certain tools which we will study in this class. Okay. So first of all, let me show you the color palette. This is the color palette in front of you. From here you can choose the colors. Okay, आप यहाँ पे ये this is the color palette. जैसे आप अपनी ड्राइंग्स में यूज करते हो कलर्स, यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स. सिमिलरली विंडोज MS पेंट ऑल्सो ऑफर्स यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स. ठीक है, फॉर योर पिक्चर्स. This is the color palette. As you can see that there are two colors, color 1 and color 2. तो जो color 1 है वो आपका foreground का color है, which means the active window का color. For example, I have chosen this maroon color for writing. तो color 1 में this color will show. ठीक है. If you want to change the setup of the background color, then you have to choose color 2. ठीक है. I have chosen color 2. See, as you can see that मेरी जो ये बैकग्राउंड स्क्रीन है उसका कलर चेंज हो गया है. ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कलर, कलर 1 एंड कलर 2. जो कलर 1 होता है वो हमारी एक्टिव स्क्रीन फोरग्राउंड स्क्रीन का होता है, और जो कलर 2 है वो आपकी बैकग्राउंड स्क्रीन का कलर होता है. ओके, नाउ so there are certain tools which are offered to us in MS Paint. One by one we will take up the tool. The first tool is the eraser tool. This tool is known as your eraser tool. ठीक है, इस तरह से एक टूल होता है. that tool is known as eraser tool. Like in your copy you used to use the eraser to rub the unwanted lines for any written by you. Similarly, for example, I have drawn a clown. ठीक है, this is the clown which I have drawn and I want to erase the hands of the clown. So I simply choose the color, eraser from here and rub it off like this. Here on the screen I am using my hand, but when you will do it practically on computers you will use your mouse. ठीक है, जैसे आप अपनी टेबल पे माउस को मूव करोगे, आपका जो ये इरेजर है it will move on the screen like this and your painting will get erased. So this is the function of the eraser tool. Next is fill with color tools. The next tool is the fill with color tool. Fill with color tool में आपको एक bucket दिखेगी, bucket या mug sort of, that is filled with color. So this is the icon for it. This tool is known as fill with color. This tool is known as fill with color tool. For example, you have painted a circle, ठीक है, and you want to fill it with color. So you will simply click on that icon or tool and choose your color from the color palette. First of all, you will choose the option fill with color, and then you will choose your desired color from the color palette, and simply with the help of the mouse you will put a small dip. ठीक है, जो आप जहाँ पे भी कलर करना चाहते हो, पहले तो आप कलर टूल को चूज करोगे फिल विद कलर को, फिर उसके बाद आप कलर पैलेट से अपना कलर चूज करोगे. देन आप जो भी आपका सर्कल है, जो भी आप एरिया में कलर करना चाहते हो, यू विल सिंपली ड्रॉप योर माउस देयर. ठीक है, इन दिस बिग स्क्रीन ऑल्दो आई एम यूजिंग माई हैंड, बट व्हेन यू विल डू, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जब आप कंप्यूटर्स पे ये सारे फंक्शंस करोगे देन यू विल यूज योर माउस फॉर ऑल दीज फंक्शंस. ठीक है, now I want to erase it, so I will simply use the eraser tool. Next is pick color. Pick color में you have इस तरह से कुछ होता है. This is known as pick color.
ओके, पिक कलर, इस टूल का क्या यूज होता है विल सी। जैसे ही आप इसको अपने टूल बॉक्स से चूज करोगे, है ना, pick color tool. Okay, pick color tool से it helps us to pick color from one part of the picture and fill it in the other part. मतलब अपनी पिक्चर से एक पार्ट से कलर को चूज करके ये आपको दूसरे पार्ट में डालने में हेल्प करता है. For this function, for this you use the pick color tool. Okay. Now next is the magnifier tool. लेंस आप सबने देखा होगा, डिटेक्टिव लेंस. दिस इज नोन एज दी मैग्नीफायर टूल. दिस इज नोन एज दी मैग्नीफायर टूल. और ये किस काम आता है? मैग्नीफायर टूल से आप किसी ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके देख सकते हो, मतलब उसका एक लार्जर व्यू देख सकते हो व्हाइल यूजिंग दी मैग्नीफायर टूल. दिस इज योर मैग्नीफायर टूल. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ये मैग्नीफायर टूल को यूज किया है. ये आपको हमने जो स्क्रीन पे 4 लिखा था छोटा सा, वो अब आपको बड़ा सा दिख रहा होगा, है ना. तो दिस इज द यूज ऑफ द मैग्नीफायर टूल. छोटा सा हमने 2 लिखा था, नाउ इट इज शोइंग लाइक दिस, इन लार्ज व्यू दिख रहा है. दिस इज द यूज ऑफ मैग्नीफायर टूल. अगेन जब आपको किसी टूल को यूज करके अनयूज करना होता है, मतलब वापस उसको हटाना होता है, देन यू सिंपली क्लिक अगेन ऑन दी बटन. फिर आपको अपनी जो स्क्रीन है वो एज यूजुअल दिखती है. ओके, तो दिस इज द यूज ऑफ द मैग्नीफायर टूल. उसके बाद वी टेक द अनदर टूल, दिस इज विच इज नोन एज द पेंसिल टूल. पेंसिल टूल जो है आपका, वो आपकी पेंसिल की शेप का ही होता है. ठीक है, तो दिस is your pencil tool. ठीक है, which is used for writing. It is used for writing. Okay, next is your brush. It helps us to draw pictures with thick lines. Brush की हेल्प से जो हम है अपने पेंटिंग पे थिक लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं. This is your brush tool. आप अपनी शेप के अकॉर्डिंग ब्रश टूल को सेलेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे आपको बहुत सारे शेप्स के ब्रशेस दिखते हैं. ठीक है, तो दीज आर ऑल दी शेप्स, है ना. दिस इज द यूज ऑफ द ब्रश टूल. ब्रश टूल की हेल्प से आप ब्रशिंग कर सकते हो. बिग स्मॉल्स अलग अलग शेप्स के ब्रशेस होते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन, देन वी हैव एयर ब्रश टूल. एयर ब्रश टूल उसी तरह से होता है जिस तरह से आप स्प्रे पेंटिंग अगर किसी ने की हो तो आप अपने फिंगर्स में या ब्रश में कलर लेके उसको स्प्रे करते हैं. ठीक है, स्प्रिंकल करते हैं एक तरह से. तो जो ये एयर ब्रश टूल है इसका भी यही फंक्शन होता है. ओके, इस तरीके से. नेक्स्ट इज योर टेक्स्ट. टेक्स्ट जो टूल होता है इट हेल्प अस टू राइट. यहाँ पे जो ए लिखा होता है दैट इज योर टेक्स्ट टूल. यहाँ पे इसको आप इनलार्ज करके यू कैन राइट इट फ्रॉम द कीबोर्ड. ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग CONTUTER. ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ द टेक्स्ट टूल. यहाँ पे आपको कंप्यूटर लिख के आएगा, है ना. यू कैन यूज दिस टूल फ्रॉम द टूल बार. टेक्स्ट टूल कैसा दिखता है? ए शेप का. ठीक, नेक्स्ट इज योर लाइन टूल. लाइन टूल ये है, यू कैन चूज अ लाइन लाइक दिस, like this is the use of the line tool. Whenever you have to draw a line you will choose the tool from this box. So this is the use of the line tool. Then you have rectangle tool.
रेक्टेंगल टूल को चूज करके, दिस इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल, है ना. फ्रॉम देयर यू कैन चूज द रेक्टेंगल टूल. ये रेक्टेंगल टूल क्या हेल्प करता है? वी ड्रॉ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर विद दिस टूल. आप इस टूल को यूज करके स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो. So what is a rectangle and a square? It is a closed figure which is formed by 4 lines. So any figure which has 4 lines in it, ठीक है, जिसमें opposite sides equal होती है, that is rectangle. So we will not go into the mathematics of it. हमें सिर्फ इसके function से काम है. तो आपकी जो tool है वहाँ पे rectangle tool होता है. From there you can use squares, use it for making squares and rectangle. Now lastly you have oval tool. ओवल टूल आपने एग की शेप देखी होगी, दैट शेप इज नोन एज ओवल. जो ना एग्जैक्टली गोल होती है, वो थोड़ी सी फ्लैटन होती है फ्रॉम दी टॉप एंड बॉटम. तो दिस इज योर ओवल टूल, जो आपको सर्कल को ड्रॉ करने में आएगा, है ना, और ओवल्स को ड्रॉ करने में आएगा. ठीक है, दिस इज द यूज ऑफ द ओवल टूल. सो विद दिस वील ओनली टेक अप. सो यहाँ तक तो ये हो गया कि कितने सारे टूल्स होते हैं जो हमें ऑफर होते हैं. नाउ हम इन्हें यूज़ कैसे करते हैं? वी सिंपली क्लिक ऑन द टूल दैट यू वांट टू चूज. आपको जो भी टूल यूज़ करना है फ्रॉम द टूल बॉक्स, यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन द टूल. उसके बाद आपका माउस पॉइंटर जो है उसको चूज़ करने के बाद माउस पॉइंटर से ड्रैग करके ड्राइंग एरिया में लाना है. दिस वाइट स्क्रीन इज नो योर ड्राइंग एरिया, जहाँ पे आप अपनी ड्राइंग को करोगे. ओके, नाउ क्लिक एंड ड्रैग माउस इन द डायरेक्शन यू वांट टू ड्रॉ. फिर आप उस डायरेक्शन में अपने माउस को ले जाओ जहाँ पे आपको ड्रॉ करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट, जब आपने उस टूल को यूज कर लिया है बाय रिलीजिंग योर फिंगर फ्रॉम द माउस, यू कैन अगेन लीव दैट टूल. सो दीज आर द फॉलोइंग स्टेप बाय यूजिंग विच यू कैन यूज एनी टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स. ओके, so this was all for this class. Thank you everyone.